Hello everyone. So topic in this video is Peterson's solution for achieving mutual exclusion. In my previous video of strict alteration solution, which is also solution for the same achieving mutual exclusion, but there is one problem. What was the problem? Problem is that over there process order, that means strict execution of process is compulsory to enter another process. For example, there are two processes. Then if process 0 has entered critical section, executed it and exit, after that process 1 has to compulsory access critical region, otherwise process 0 cannot enter into critical section. Okay, that was the mechanism in strict alteration problem. So over here in Peterson's solution, that particular drawback is removed in this solution. So basically this algorithm is also provided for two processes, but over here it is not mandatory that you have to, and processes needs to enter in strict order. Okay, it is not strict alteration, it is not following strict alteration. So any process can enter into the critical section when there is no other process. Okay, so let's see what is the concept of this Peterson solution algorithm. So before using the shared variable, that means it is your critical section, each process call enter region. So basically it is kind of a method which each process needs to call before entering into the critical section with its own process number. It can be either 0 or it can be 1 as a parameter. Okay, so if any process wants to execute enter into critical section, then first it has to execute enter region method and one parameter, that is it can be value of that parameter can be 0 or 1. This call will cause it to wait if need be until it safe to enter. So उसमें यदि उस प्रोसेस को कॉल किया है तो उसको वेट भी करना पड़ता है. कब वेट करना पड़ता है? जब कोई प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है, और यही तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है. ओके, म्यूचुअल एक्सक्लूजन. After it has finished with all the shared variable, the process call leave region to indicate that is done and to allow the enter process to enter. So if it is desired. So पहले आपको enter region की मेथड को फॉलो करना है. उसके बाद यदि वो एंटर हो सकती है, वो अलाउ है एंटर होने के लिए क्रिटिकल सेक्शन में, तो वो क्रिटिकल सेक्शन में जो भी शेयर्ड वेरिएबल डेटा वो जो भी है वो एक्सेस करना चाहती है वो करेगी प्रोसेस. एंड आफ्टर दैट it needs to execute leave region method. Okay, and over there it will perform some operation. Okay, so let's see what is provided by Peterson's solution. So okay, so this is basically kind of a pseudo code that reflect the Peterson solution point of view. So over here you can see define false 0, define true 1. Okay, let me tell you one thing. If you have not watched previous video of solving mutual exclusion using busy waiting and strict alteration, then please must watch that first, and then only you can understand the concept of Peterson solution. Because if you don't know what is the flow of strict alteration solution, then you cannot get it. Okay, so please watch that video first and then only go through this. Okay, so let's continue. Hash define false is equals to 0, hash define true is equals to 1. So basically over here they are just declaring constant. Okay, so false that means 0 and true that means 1. After that hash define and 2. So over here another constant is defined, that is number of processes. Okay, so over here this solution is basically for two processes. Okay, and is defined as a 2. Integer turn. Okay, so this variable is used to track whose turn it is. After that integer interested of n. So this is basically providing you array of type integer. Okay, and as you know, whenever you declare array, all the values initially set to 0. So now 0 that means false. Okay, and what is value of n? That is 2. So
it is defining array like this. Okay, so 0 0. Void enter region. Now it is the method that needs to be executed by each process to enter its critical section. Okay, so you can see void enter region integer process. Now this parameter is number of particular process. It can be 0 or it can be 1. Okay, it can be 0 or 1, no other values. So let's say process P0 has arrived. Okay, now over here you have to assume that process P0 wants to enter into critical section, so it is entering, so it needs to execute this void enter region method. Okay, before that let's just see. Okay, let us see how the solution works. Initially neither process is in critical section, as we have seen that over here in this array both value of this both is at index 0 and 1 are 0 0. That means no process is in critical section. Now process 0 calls enter region. Okay, so process 0 क्या करती है, वो enter region method को call करती है. It indicates its interest by setting its array element and set turn to 0. Okay, अब उस मेथड के अंदर वो प्रोसेस क्या करती है, यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है इंटीजर अदर. ओके, नंबर ऑफ अदर प्रोसेस. सो अदर इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोसेस. नाउ कौन सी प्रोसेस अभी फिलहाल क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहती है, प्रोसेस 0. दैट मीन्स यहाँ पे क्या पास होता है, 0. what is value of process right now, that is 0. okay, अब 1 minus 0, 1 minus 0 that means 1, that means 1. okay, so other की वैल्यू अब क्या हो गई, 1. आफ्टर दैट इंटरेस्टेड, अब देखिए यहाँ पे किस इंडेक्स में हम ट्रू करना चाहते हैं, जो प्रोसेस अभी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है उसकी वैल्यू हम क्या सेट करते हैं, ट्रू सेट करते हैं. और ट्रू जो कि वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू क्या है, 1. ओके, सो क्या हो जाता है, ये देखिए, ये आपका वो इंटरेस्टेड वाला ये जो है वो एरे है इंटरेस्टेड और उसकी साइज क्या है, 2. ओके, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ प्रोसेस फॉर प्रोसेस P0, दैट इज 0. और वहां पे आपने क्या सेट किया है, ट्रू. दैट मीन्स इट्स वैल्यू इज नाउ 1. ओके, आफ्टर दैट वो क्या करती है, उसकी टर्न इज इक्वल्स टू प्रोसेस. सो इट इज जस्ट बेसिकली सेटिंग द फ्लैग. ओके, सो टर्न की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे, 0. वाई, बिकॉज फॉर प्रोसेस P0 this parameter is 0. okay, अब क्या होता है, since process 1 is not interested into enter region, it returns immediately. okay, so यहाँ पे ये देखिए, ये जो while loop है वो बहुत ही important है इस एल्गोरिथम को समझने लिए. बेसिकली यही वो इट इज अ की पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड एंटर रीजन. अब वहां पे हम 2 कंडीशन चेक करते हैं. ओके, और वो क्या है वो कंडीशन, देखिए, टर्न इज इक्वल्स टू प्रोसेस. ऑब्वियसली ये कंडीशन ट्रू होना ही है और होना ही है. क्यों, बिकॉज यहाँ पे ही आपने सेट किया है टर्न इज इक्वल्स टू प्रोसेस. ओके, जो भी प्रोसेस आती है, इफ इट इज 0 देन असाइन टू टर्न एंड इफ इट इज 1 देन इट इज असाइन टू टर्न. दैट मीन्स ये कंडीशन तो ट्रू होनी ही है, टर्न इक्वल प्रोसेस. अब यहाँ पे क्या है, एंड ऑपरेटर. दैट मीन्स व्हाट, इस पूरी कंडीशन को ट्रू होने के लिए इस कंडीशन को भी ट्रू होना जरूरी है. ओके, एंड आफ्टर ये देखिए, ये जो वाइल लूप है वहां पे सेमीकोलन मेंशन किया हुआ है. सो व्हाट डज इट मीन, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक वो बिजी वेट में जाएगी. दैट मीन्स जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक वो क्या करेगी, इसी कंडीशन को चेक करती रही. दैट मीन्स इट इज स्टक्ड इन दिस वाइल लूप. ओके, इफ दिस कंडीशन इज रॉन्ग देन ओनली इट कैन come out from this while loop and enter into the critical region. Okay, so after that you can see interested of other. Now what is value of other, you can see over here value of other is 1. Okay, so interested of 1, so basically it is providing you position of array. okay, interested of 1 equal true. so यहाँ पे आप देखिए interested of 1, that means ये 0 इंडेक्स और ये 1 इंडेक्स. ओके, और यहाँ पे ट्रू है
है ट्रू. व्हाट इज वैल्यू ऑफ ट्रू? ट्रू की वैल्यू तो 1 है और यहाँ पे क्या है वैल्यू 0. दैट मीन्स ये कंडीशन जो है वो आपकी फॉल्स है. और जबकि हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज किया है, सो ट्रू एंड फॉल्स, दैट मीन्स अल्टीमेटली इट्स गोना फॉल्स. दैट मीन्स वो जो प्रोसेस है वो इमीडिएटली इस लूप से बाहर आ जाएगी और वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकेगी. ओके अब क्या होता है कि इफ प्रोसेस 1 नाउ मेक्स अ कॉल, अब हमें यही तो चेक करना है कि अब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो कोई दूसरी बाहर की प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहती है तो वो अलाउ करती है कि नहीं, उसका ऑर्डर क्या है वही हमें चेक करना है. तो सब मान लीजिए कि अभी जो प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर पहुंच गई है और वो उसका काम कर रही है एग्जीक्यूशन करने का, तभी उसी दौरान प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आना चाहती है और वो भी क्या करेगी, इस वॉइड एंटर रीजन मेथड को कॉल करेगी. क्या करेगी? एंटर रीजन मेथड को कॉल करेगी. ओके so it will hang there until interested of 0 goes to false, an event that happens only when process P0 calls leave region to exit the critical section. Okay, so let's see what happens if at this time process P1 call enter region. Okay, तो यहाँ पे देखिए process enter region integer process. अब कौन सी वाली प्रोसेस आ रही है? process P1. और वो आर्ग्यूमेंट में क्या पास करेगी? वो क्या पास करेगी? ये अभी का स्टेट है. अभी का स्टेट क्या है जब प्रोसेस P1 आना चाहती है? 1 0. ओके और अब क्या होता है, प्रोसेस P1 आती है तो वो पैरामीटर में क्या पास करेगी? 1. आफ्टर दैट अदर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1. सो बेसिकली क्या हो जाती है इसकी वैल्यू? 0. 1 माइनस 1. वाई प्रोसेस की वैल्यू 1? बिकॉज P1 वाली प्रोसेस या आर्ग्यूमेंट में कौन सी वैल्यू पास होती है? 1. ओके आफ्टर दैट इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस. नाउ यू कैन सी व्हाट इज वैल्यू ऑफ प्रोसेस राइट नाउ? 1. ओके 1. सो इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस इक्वल्स टू ट्रू. दैट मीन्स यू कैन सी अदर की वैल्यू 0 हो गई और इसकी वैल्यू ट्रू हो गई. दैट मीन्स यहाँ पे interested of process, so process की वैल्यू है 1. so basically we are pointing out it is referring to this position. okay इसकी वैल्यू तो पहले से ही 1 हुई ही थी बिकॉज उसने यहाँ पे पहली बार क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री की थी और अभी तक वो बाहर नहीं निकली है. ओके वो अभी तक प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन में ही है और मीनवाइल प्रोसेस P1 आती है, ये हम उसकी बात कर रहे हैं. नाउ आफ्टर दैट टर्न इज इक्वल्स टू प्रोसेस. सो टर्न की वैल्यू क्या हो जाती है राइट नाउ? 1. आफ्टर दैट प्रोसेस P1 अब वो दिस कंडीशन को चेक करती है, इस कंडीशन को चेक करती है. तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला टर्न इक्वल टू प्रोसेस, ये ऑलवेज ट्रू ही होना है. लेकिन इस प्रोसेस को देखिए, इफ इंटरेस्टेड ऑफ अदर इक्वल ट्रू. अब देखिए तो इंटरेस्टेड ऑफ अदर उसकी वैल्यू क्या है? अदर की वैल्यू यू कैन सी ओवर हियर 0. ओके सो इंटरेस्टेड ऑफ 0 इक्वल टू ट्रू. तो यहाँ पे देखिए ये आपका एरर है इंटरेस्टेड ऑफ 0. दैट मीन्स दिस पोजिशन इज 1. दैट मीन्स इट इज ट्रू. सो व्हाट डज इट मीन? दोनों ही कंडीशन ट्रू है, दोनों ही कंडीशन ट्रू है. सो अल्टीमेटली दिस व्हाइल लूप की जो कंडीशन है वो ट्रू है. और जैसा कि मैंने बोला ये यहाँ पे सेमीकोलन दिया गया है. दैट मीन्स ये जो प्रोसेस P1 है वो कंटिन्यूसली इट इज स्टक इन दिस व्हाइल लूप. ओके कंटिन्यूसली उसको चेक कर रही है और वो कब तक बाहर नहीं आ सकती? जब तक ये कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती. और ये कंडीशन कब फॉल्स होनी है? जब इस यहाँ की वैल्यू फॉल्स आती है. ओके बिकॉज ये तो ट्रू होना ही है. सो वी कैन ओनली मेक दिस टू चेंज. ओके अब देखिए ये जो प्रोसेस P1 है वो बस चेक करती रही हो और अब क्या होता है कि प्रोसेस P0 का काम जो है वो खत्म हो गया है. ओके नाउ कंसीडर द केस दैट बोथ प्रोसेस कॉल एंटर रीजन ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली. both will store their process number in turn. That it is just the case that I have already explained. Okay so I'm not going through this. Okay अब देखिए कि प्रोसेस P0 है वो कौन सी प्रोसेस को कॉल करती है? void leave region integer process. ओके सो इस प्रोसेस में क्या होता है? और बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल
ये प्रोसेस कब कॉल होती है? जब किसी प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन में उसका काम कर दिया, उसका एग्जीक्यूशन हो गया और अब वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आना चाहती है. ओके, सो इसीलिए इसका नाम भी थोड़ा ऐसा दिया गया है, लीव रीजन. दैट मीन्स व्हेन दिस प्रोसेस इज लीविंग द क्रिटिकल रीजन. यहाँ पे भी उसको क्या पास करना है? दैट आर्ग्यूमेंट. ओके, सो कौन सी प्रोसेस अभी बाहर जाना चाहती है? प्रोसेस P0, बिकॉज वही अंदर थी. सो 0 इज यहाँ पे आती है और हमने क्या कर दिया आपने देखो, इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस इक्वल्स टू फॉल्स. इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस इक्वल्स टू फॉल्स. सो बेसिकली हमने क्या सेट किया? व्हाट इज वैल्यू ऑफ प्रोसेस? 0. सो इंटरेस्टेड ऑफ 0 इज फॉल्स. सो क्या होगा? 0 1. इसकी वैल्यू अब यहाँ से क्या हो चेंज होकर क्या हो जाएगी? 0 1. ओके, अब देखिए ये जो प्रोसेस P1 थी वो कंटिन्यूअसली चेक कर रही थी कौन सी वैल्यू को? इस कंडीशन को, इंटरेस्टेड ऑफ अदर इक्वल इक्वल ट्रू. नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ अदर? व्हाट इज वैल्यू ऑफ अदर फॉर प्रोसेस P1? इसकी वैल्यू क्या थी? 0. और इंटरेस्टेड ऑफ अदर, दैट मीन्स इंटरेस्टेड ऑफ 0 इक्वल इक्वल ट्रू. यहाँ पे देखिए इंटरेस्टेड ऑफ 0 इक्वल टू 0, दैट मीन्स फॉल्स. सो क्या हुआ? कंडीशन फॉल्स हो गई. सो अल्टीमेटली दिस वाइल लूप की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई और P1 इस वाइल लूप से बाहर आ गया. उसने बोला कि चलो हाश, अब क्रिटिकल सेक्शन में मैं एंटर हो सकता हूँ. ओके, फिर अगेन वो क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस P1 की एंट्री होगी, उसका जो काम है वो निपटाएगी और बाद में इस कौन सी मेथड को कॉल करेगी? वॉइड लीव रीजन को. ओके, और उसकी जो एरे में जो उसकी वैल्यू है उसको कौन से क्या सेट कर देगी? फॉल्स. तो यहाँ पे स्ट्रिक अल्टरेशन में जो प्रॉब्लम थी कि वहां पे हमें स्ट्रिक ऑर्डर फॉलो करता है. यदि पहले प्रोसेस P0 आती है सो अगेन P1 को आना पड़ेगा, देन ओनली P0 कैन एग्जीक्यूट द क्रिटिकल सेक्शन. बट Peterson solution remove this drawback and it provide a smooth execution between these two processes. Okay, so it is the case. Okay, so that's all about this Peterson solution. I hope you understood this. And थोड़ी सी ट्रिकी है ये जो सॉल्यूशन, लेकिन अब आप ध्यान से समझेंगे देन इट इज़ वेरी इजी. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.